बच्चों, we will discuss now variation of conductivity and molar conductivity with concentration of solution. First, we will discuss how conductivity varies with concentration. Conductivity is directly proportional to the concentration of solution. It means that conductivity decreases with decrease in concentration or increase in dilution. Conductivity or kappa decreases with decrease in concentration or increase in dilution. अगर हम concentration decrease करेंगे बच्चों, इसका मतलब dilution increase करें. अगर हम dilution बढ़ाएंगे तो concentration क्या हो जाएगा? Decrease होगा. ठीक है? Now why this is so? ऐसा क्यों है ये रिलेशन? कैसे आया? क्यों कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज इन डाइल्यूशन? हम कंसंट्रेशन डिक्रीज या डाइल्यूशन इंक्रीज करें तो कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है? लेट अस डिस्कस व्हाट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस of a solution when it is kept between platinum electrodes with unit area of cross section and at a distance of unit length be 1 or area be 1, then conductance will be equal to conductivity. We have already discussed it. Length in area 1. So ऐसे सेल में कितना सॉल्यूशन आएगा? वॉल्यूम कितना होगा उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम? जहाँ पे एल भी 1 है और ए भी 1 है तो वॉल्यूम कितना होगा? अगर हम लेंथ 1 सेंटीमीटर और ए भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लें तो वॉल्यूम क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब. So we can say conductivity is the conductance of unit volume. Unit volume of solution. ठीक है? Conductivity is the conductance of unit volume solution. ठीक है बच्चों? अब देखते हैं. Suppose this is unit volume. Suppose this is 1 centimeter cube of solution. A solution of 1 centimeter cube volume is kept here, and now conductance of this solution, conductance of this 1 centimeter cube solution is known as conductivity. Yes, why? Because ये क्या है? 1 centimeter cube है. ठीक है? L और A 1 है. What happens if we increase वॉल्यूम? यानी हमने क्या किया? डाइल्यूशन कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, जस्ट डबल कर दिया. ठीक है? इंक्रीज इन डाइल्यूशन. देन व्हाट हैपन? कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. अभी हमने इसमें जितने मोल्स डाले थे वही मोल्स आयंस इस पूरे वॉल्यूम में है. तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए? डिक्रीज. सपोज हमने यहाँ पर 1 मोल्स डाले थे, अभी वाटर हमने यहाँ पर डबल कर दिया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, देन 1 मोल पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए आयंस. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे में. तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस वो क्या हो गया? डिक्रीज. यहाँ पे हाफ मोल ही रह गए, हाफ मोल यहाँ पे है ना? तो ये नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमारी कंडक्टिविटी किसे कहेंगे? सिर्फ 1 यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस को. तो ये तो क्या हो गई? यहाँ पे तो आयंस जो कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो तो कम हो गए. नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस. दैट्स व्हाई नंबर ऑफ आयंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीजेस. दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. क्लियर बच्चों? सो क्वेश्चन नंबर 3.7 of your exercise, it was also asked a board exam that why does the conductivity of solution decreases with dilution.
ठीक है. So what is the reason behind this? What you should write? Conductivity always decreases with decrease in concentration or increase in dilution, because the number of ions per unit volume that carry current in a solution decreases. Clear, bachcho? You should note this line. Okay. Now, variation of molar conductivity with concentration, we will discuss it. Molar conductivity, just reverse. Molar conductivity increases. Molar conductivity increases with decrease in concentration, inversely proportional. So molar conductivity increases with decrease in concentration or increase in dilution. तो बच्चों यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है. वो फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर भी फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, और यहाँ भी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है फॉर बोथ. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है फॉर बोथ strong as well as for weak electrolyte. So what is the reason behind this? Why molar conductivity increases with increase in dilution or decrease in concentration? So let us again discuss. What is molar conductivity, bachcho? Conductivity of a solution. Molar conductivity is the conductance of a solution whose वॉल्यूम कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. यानी उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल डिसॉल्व है, उस वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी दैट विल बी मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है. जिस सॉल्यूशन में 1 मोल डिसॉल्व है उसे हम कहते हैं. जैसे हमने यहाँ भी डिस्कस किया ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब. सपोज दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्वेंट में 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऐड कर दिए गए हैं, है ना. यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब कुछ भी हम ले सकते हैं. 1 मोल इज एडेड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. देन व्हाट हैपेंस? दिस कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी, बिकॉज दिस इज the conductance of 1 centimeter cube solution, as well as conductance of this solution also termed as molar conductivity because 1 mole dissolvent. यानी यहाँ पर molar conductivity and conductivity दोनों बराबर हैं. क्यों? क्योंकि concentration हमने क्या ले लिया है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही डिसॉल्व है, इसलिए दोनों इस केस में क्या हो गए हैं? बराबर. 1 मोल डिसॉल्व होते हैं जिस वॉल्यूम में, उसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. यहाँ पे 1 मोल डिसॉल्व है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं. तो बोथ आर सेम इन दिस केस. बच्चों, व्हाट हैपेंस इफ वी डबल दिस सॉल्यूशन? यानी हम डाइल्यूशन बढ़ा दें. क्या कर दिया हमने? जस्ट डबल कर दिया. 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया. और इलेक्ट्रोलाइट कितना है? 1 मोल ही है. तो इंक्रीज इन डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन क्या कर दिया? डिक्रीज हो गया, क्योंकि अभी 2 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल है, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल थे. ठीक है ना. तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ या डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ. देन व्हाट हैपेंस? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो डिक्रीज हुए, इसीलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई. बट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है जिसने 1 मोल का लिया हुआ है? वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम है ना, द टोटल वॉल्यूम इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो कंडक्टेंस ऑफ सेकेंड केस में, पहले केस में तो यहाँ पे 1 मोल डिसॉल्व थे, सेकेंड केस में इसमें 1 मोल डिसॉल्व है. तो कंडक्टेंस ऑफ दिस वॉल्यूम यानी 2 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, है ना. तो अब
अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर रहे थे कंडक्टिविटी में कि डबल करने पर भी कंडक्टिविटी इसकी ही कंडक्टेंस को कह रहे थे। यहाँ पर इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी होगी क्योंकि इसमें 1 मोल डिसॉल्व है। नाउ व्हाट हैपेंस, 1 मोल इसमें डिसॉल्व है तो क्या होगा, आयंस जो यहाँ पर जितने थे, ठीक है बच्चों, जितने आयंस थे on increasing dilution what happens, one thing happens that यहाँ पर वॉल्यूम कम होने से मूवमेंट ऑफ आयंस डिफिकल्ट था बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, बट वॉल्यूम इंक्रीज करा तो इनको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है मूवमेंट के लिए, तो कंडक्टेंस अफेक्टेड हो रही है और रेजिस्टेंस कम होने से कंडक्टेंस क्या हो रही, थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो वाई 1 मोल इस पूरे में डिजॉल्व है ना, तो इसकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हैं और वो क्यों बढ़ रही है जब हमने डायल्यूशन बढ़ाया, क्योंकि आयंस फील लेस रेजिस्टेंस ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच क्या है, कम हो गया। हम इतनी जगह में आयंस घूम रहे थे, अभी इतनी जगह में वही आयंस घूम रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। For a strong electrolyte, there is no any significant effect on increasing dilution on degree of dissociation. Strong electrolyte यहाँ पर भी dissociate हो रहे थे, अभी भी लगभग उतने ही dissociate हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर degree of dissociation बहुत ज़्यादा affected नहीं होती है, वो highly dissociated होते हैं हमेशा। So for a strong electrolyte, only one reason is that concentration कम करने से इनके बीच का इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन्हें मूवमेंट में रोक रहा है वो कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इससे बढ़ गया। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये रीज़न तो है ही है बच्चों, इसके अलावा एक और रीज़न है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ाता है, और वो है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का 20% है, डाइल्यूशन बढ़ाने से, ओस्वार्ड डाइल्यूशन लॉ हमने पढ़ रखा है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ जाता है। यानी पहले अगर 10 में से 2 आयंस डिसोशिएट हो रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के, अभी और ज़्यादा 10 में से शायद 5 डिसोशिएट हो रहे हैं, तो ज़्यादा आयंस डिसोशिएट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट में 2 रीज़न की वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में केवल एक ही रीज़न है। दैट्स वाई दिस इज वेरिएशन ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है बट बहुत कम, है ना। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मोलर कंडक्टिविटी आप देखिए बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुई है, थोड़ा ही इंक्रीज हुई है। क्यों, क्योंकि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ी ना बढ़ रही है, इनमें तो केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ रही थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखिए वेरिएशन कितना ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन पर बहुत कम थी, हाई कंसंट्रेशन था जब तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी, बहुत कम थी। एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज मोलर कंडक्टिविटी एकदम से बहुत बढ़ गई, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस in variation of molar conductivity with concentration for strong and for weak electrolyte. You have noticed it? Clear? Strong electrolyte के लिए बहुत थोड़ा सा ही इंक्रीज हो रही है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन कम किया और डाइल्यूशन बढ़ाया। वन मोर थिंग, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो स्ट्रेट लाइन है वो फॉलो करती है इसे, इस इक्वेशन को। सो इस इक्वेशन में अगर हम y इज स्ट्रेट लाइन है ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो देखिए x क्या है, रूट सी
x हमारा √c है, y क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, और ये हमारा स्लोप क्या है, -a। स्लोप क्या हुआ हमारा, -a, और इंटरसेप्ट क्या हुआ, इंटरसेप्ट λm0। अभी जान लेते हैं ये λm0 क्या है बेटा। λm0 मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। λm0 is molar conductivity at zero concentration और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी अगर हमारा डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए, जीरो कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन क्या कहेंगे, इनफाइनाइट हो जाए, उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड λm0 एंड दिस इज represented as this and it is known as molar conductivity at infinite dilution or limiting molar conductivity। क्या कहते हैं इसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, नाउ we will discuss Coleridge law।